Hello, welcome to my channel. I am Suman and I am going to teach you business studies of class 12. Now, you all know that your exam is going to be on 9th July. According to that, we are going to target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel. Watch one video daily and you don't need to touch the book. Learning with complete understanding. So, let's start. We are going to start the syllabus of class 12 business studies. Firstly, we will look upon chapter 1 and we are not going to complete the chapter 1 in this video. That's why the name of this video is according to part 1. The topics we are going to cover in this video are meaning of management, concept of management, characteristics of management, objectives of management, and importance of management. So, let's start with the chapter 1. The name of the chapter is The Nature and Significance of Management. As the name is telling about the nature and significance of management, तो we will focus on the topic management. अब हम क्योंकि syllabus को start कर रहे हैं तो we must know what is management. So, let's know what is management. It is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Firstly, this is the process. Management is a process. That's why the first line is saying it is the process. It is the process of getting things done. यानी कि चीज़ों को करने का process, जो भी काम हम करना चाहते हैं उस काम को करने के process को हम कह रहे हैं management. लेकिन वो काम करना कैसे है? With the aim of achieving goals. कोई ना कोई aim है goals को achieve करने का. इसीलिए हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो काम बहुत ही ज़्यादा effectively होना चाहिए और efficiently होना चाहिए. Coming through this definition, we came to know that management has three concepts: process, effectiveness, and efficiency. Firstly, it is a process and work should be done effectiveness and efficiency. Coming to the point, concept of management, we are going to know about concept of management in detail. What is process? Why we are calling this management topic as a process? Because it is followed by the steps of some functions. इसके कुछ functions हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? Primary functions. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 फंक्शंस हैं जिसको मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिवनेस. अब ये इफेक्टिवनेस क्यों होना चाहिए? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम. जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये किसी काम को करने का प्रोसेस है, लेकिन उस काम को कैसे करना है पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम पे इस काम को कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए. सो अगर हम इसकी मेन कंसिडरेशन को देखते हैं, ये मेन कंसिडरेशन क्या है? एंड रिजल्ट. वो एंड रिजल्ट को चेक करता है कि वो कब खत्म हुआ. नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी. कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपको काम को कैसे खत्म करना है? क्योंकि ये बिजनेस का पॉइंट है मैनेजमेंट, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं कि कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके आउटपुट लेके आना. सो इसका मेन कंसिडरेशन क्या होगा? कॉस्ट. सो मैनेजमेंट में क्या होता है? प्लानिंग करते वक्त पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस टाइम पे ये काम खत्म होना चाहिए और कितनी कॉस्ट पे खत्म होना चाहिए. सो प्रोसेस कंप्लीट भी करना है लेकिन सही टाइम पे और कम से कम कॉस्ट पे करना है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. और इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट.
What are the characteristics of management? You are looking at so many circles on the diagram. Let's start with the goal oriented process. सबसे पहले कोई भी काम हम डिसाइड करते हैं करने के लिए बिजनेस में, तो उसका एक गोल होता है. अब आप कहेंगे बिजनेस का तो एक ही गोल है, प्रॉफिट अर्न करना. नो, वी कैन नॉट से दैट. हम हर एक काम को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस काम के पार्ट्स के अलग अलग गोल्स होते हैं और हर स्टेप के ऊपर मैनेजमेंट की जाती है. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन गोल है वो प्रॉफिट अर्न करना ही हो. सम ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो उनका क्या मोटिव बन जाता है, उसको ग्रो करना, ग्रो करने के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना. तो सबका अलग अलग गोल्स हो सकता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज परवेसिव. ये कैसे है परवेसिव? बिकॉज इट इज यूनिवर्सल. अब ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. इवन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर आके देखें सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड को, तो ये होम यूजर्स के भी काम आती है. हर जगह इसकी ज़रूरत है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इज परवेसिव. द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल यानी कि एक पॉइंट पे फोकस नहीं करना है. इसके 3 पार्ट्स हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. 3 पॉइंट्स को फोकस किया है. वर्क की मैनेजमेंट भी करनी है, पीपल की भी करनी है और ऑपरेशन की भी करनी है. तो ये एक ही जगह पे फोकस नहीं किया है मैनेजमेंट ने, कई जगहों पर किया हुआ है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक वर्क है बिजनेस के अंदर, जो कर लिया तो अब हम चलो दूसरे वर्क करते हैं. नो, जब भी कोई भी किसी भी टाइप का कुछ भी वर्क हो रहा है किसी भी लेवल पे, तो ये मैनेजमेंट प्रोसेस चलता रहेगा. ये साइड बाय साइड होता है, पैरेलल प्रोसेस होता है. कोई भी काम होगा मैनेजमेंट एक्टिविटी उसके साथ साथ ही चलती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंटिन्यूअस प्रोसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप एक्टिविटी. हाउ इट इज ग्रुप एक्टिविटी? देखो, ये काम जो है मैनेजमेंट का क्या होता है, दूसरों से करवाना मेन मोटिव होता है. मैनेजर खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति भी अपने काम को करता है, वो उसको भी मैनेज करके चलता है, टाइम को, टारगेट को. बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेजमेंट में क्या समझते हैं कि काम दूसरों से कैसे करवाना है, दूसरों की कोऑर्डिनेशन कैसे बनानी है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनी रहे, क्योंकि उनका काम जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि वो एक ही पार्ट का ऑर्गेनाइजेशन है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को लेकर ही एक साथ काम करें, उस काम को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है. दैट्स व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. The next point is dynamic function. How it is dynamic? अब मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट ही करेगी, बट हम मैनेजमेंट में ये पॉइंट इसलिए डालते हैं कि आप अपने पुराने प्रिंसिपल्स या पुराने पॉइंट्स या पुराने तरीकों को ही नहीं अडॉप्ट करें. अगर आपको लग रहा है टाइम के साथ चेंज होना है या कंपटीशन के साथ चेंज होने की कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, तो वो चेंज लाना भी मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि चेंज लाना इज ऑल्सो नॉट ईजी. एम्प्लॉयज़ भी चेंजेस को थोड़ा सा अपोज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, बिकॉज जो पुराने तरीके होते हैं वो उसके यूज टू हो चुके होते हैं और नए को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ उन्हें चेंजेस लाने पड़ते हैं. और उन चेंजेस को बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सके, उसके लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है. सो डायनेमिक फंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. Coming to the next feature or characteristic of the management, intangible force. अब कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कोई इंजीनियर है प्रोफेशनल, या कोई डॉक्टर है या कोई टाइपिस्ट भी है, तो आपको दिख जाएगा वो टाइपिंग कर रहा है, वो अपनी मशीन के साथ इंजीनियर वर्क कर रहा है, कुक जो है कुकिंग कर रहा है अपनी चीज़ों के साथ. बट मैनेजमेंट में आपको दिखाई नहीं देगा कि वो कैसे कर रहा है मैनेज, क्योंकि वो इन सारी वर्किंग को ही तो मैनेज करता है. सो इसलिए इसे इनटेंजिबल यानी जो दिखाई नहीं देती है वो फोर्स कहा जाता है. अगर हम किसी भी काम में से मैनेजमेंट को ही निकाल दें तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है. इनफैक्ट वो दिखाई नहीं दे रहा है बट वो कर रहा है. ओके,
Coming to the next topic, that is मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। अभी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी जिसमें एक पॉइंट था मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। अब मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट कैसे है मैंने आपको कहा था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है उसकी डिटेल्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क क्या कह रहा है, हम वर्क की मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हमें पहले से ही डिसाइड किया जाता है व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाएगा। ये मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस के अंडर आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। हाउ इट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल की मैनेजमेंट कैसे है। अब हम ये डिसाइड तो कर लिया है कि हमें काम क्या करना है, लेकिन हम ये किससे करवाएं, कौन उस काम के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये डिसाइड करना बाय हुम इज टू बी डन, कौन करेगा। इसके अंडर कौन से फंक्शंस आते हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग इसके अंडर आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के कौन से पॉइंट्स हैं, टू जनरेट इनपुट। वैसे देखा जाए तो ये वर्क और पीपल को मिला के जो काम कंप्लीट होगा वो ही तो ऑपरेशन है, लेकिन एक आउटपुट को जनरेट करना वो किसके थ्रू, प्रोडक्शन, सेल्स और परचेजेस के थ्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, काम को खत्म कराना। काम तो खत्म कराना ही है, साथ ही साथ और भी ऐसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ड्यूटीज होती हैं जो पूरी करनी है बिजनेस में, वो ड्यूटीज भी मैनेजमेंट की होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ड्यूटीज होती हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, उसे हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी है और वो अपना काम करेंगे, नो, उनकी कुछ और पर्सनल सेटिस्फेक्शंस भी होती हैं जो उनको कंपनी में अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कर सकें। उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम पढ़ेंगे इसमें। सो लेट्स नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन लेके चलती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सर्वाइवल। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि हम सर्वाइव कर सके, और सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। उनके पास इतना रेवेन्यू आ जाना चाहिए कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। रेवेन्यू तो आपको पता ही होगा, रेवेन्यू क्या होता है, टोटल सेल्स से जो अमाउंट मिलता है। सपोज कोई भी पेन है, 5 रुपीज़ का आपने कॉस्ट, आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको बनाने की कॉस्ट है, और आपका रेवेन्यू अगर 5 रुपीज़ भी आ रहा है, यानी टोटल सेल से आपको 5 रुपीज़ भी मिल रहे हैं पर पेन, तो आप क्या कहोगे कि जितना मैंने खर्चा किया है उतना मेरे पास कमाई वापस आ गई है, सो दैट कि मैं अभी अपने खर्चे तो पूरे कर पा रहा हूँ, प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा होगा। यानी कि 5 रुपीज़ की कॉस्ट आई है और हमें 7 रुपीज़ मिलेंगे, तभी हम कहेंगे प्रॉफिट है, बट 5 रुपीज़ का ही पेन 5 रुपीज़ में ही सेल कर दिया। मीन्स क्या है कि टोटल सेल्स पे से भी आपको उतने ही रुपए मिल रहे हैं। चलो फिर भी आपने कहा कोई बात नहीं, हम सर्वाइव तो कर रहे हैं। सो सर्वाइवल का मोटिव क्या हो गया यहाँ पे, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट। अभी वो सर्वाइव करने लग रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, हमने किस लिए सर्वाइव किया था, ताकि हम प्रॉफिट अर्न करें। और प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ करना। ग्रोथ कैसे पता चलेगी, जब हम ये देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस के प्रोडक्ट्स बढ़ गए। यानी कि आपने देखा होगा एक ही कंपनी कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है और उसकी ब्रांचेस कई जगह पे होती है और उनके एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो यानी कि वो एक्सपेंड करना, बिजनेस को छोटे से बड़ा बनाना, दैट इज ग्रोथ। जरूरी नहीं है हम खाली प्रॉफिट पे ही रहें, हम ग्रोथ के बारे में भी सोच सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी क्या चाहेगी एक कंपनी से या एक बिजनेस से, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस कैसे होनी चाहिए, रिजनेबल, यानी कि उनको पे कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ की आपने बहुत अच्छी क्वालिटी बना दी और उसको इतना ज़्यादा प्राइस रख दिया लेकिन उनको लेना भी पड़ रहा है, तो वो बिजनेस से ज़्यादा खुश नहीं होंगे, तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करेंगे और कंपटीशन आना बहुत इजीली हो जाएगा। इसीलिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना जरूरी है कि आपका प्रॉफिट भी आता रहे और कस्टमर भी हैप्पी रहे।
द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देता है तो भी सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होता है, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो एक अच्छा पॉइंट रहता है सोसाइटी के टुवर्ड्स। ये भी एक मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक वेल्थ, अब वहाँ पे अगर आप कुछ इकोनॉमिक वेल्थ देना यानी कि उनकी अर्निंग करवाना किसी तरीके से, ये भी उसी पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आप अपने बिजनेस की रेपुटेशन को सोसाइटी की नज़रों में अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम बनाएं, करें कुछ, या हेल्थ प्रोग्राम हो या वोकेशनल ट्रेनिंग दें उनको किसी चीज़ से रिलेटेड। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, या उसके क्या फ़ायदे हैं, या उसकी लाइफ में कितनी अच्छी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में उनको इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है, प्रोडक्शन जो है बिजनेस फैक्ट्रीज इस तरीके से करती हैं कि उनकी मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी ध्यान देना है कि उनकी प्रोडक्शन की वजह से कुछ ऐसा ना हो रहा हो कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा हो। प्रोडक्शन इस तरीके से की जानी चाहिए कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। ये भी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड है तो सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, एडिकेट सैलरी। जबकि हमने पहले सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा है कि उनको अच्छी इकोनॉमिक वेल्थ मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक वेल्थ, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ बनने के बाद एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है। तो ये इंटरकनेक्टेड है थोड़े से। एडिकेट सैलरी, जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो दे दी है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरे को यहाँ पे अपने काम के अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो यहाँ से काम छोड़ के कहीं और ढूंढने की कोशिश करेगा। उससे ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, उसको वहाँ के लिए ट्रेंड करते हैं, फिर वो छोड़ के चला जाता है, फिर आपको नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है और साथ ही साथ जो पुराने एम्प्लॉय को आपने सिखाया था वो भी आपका नुकसान होता रहता है। तो एडिकेट सैलरी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग कंडीशंस को देख के भी एम्प्लॉयज़ अपने डिसीजन लेते हैं कि आप उनको इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीयर रिकॉग्निशन। पीयर का मतलब होता है सेम ग्रुप के लोगों को पीयर बोला जाता है। तो सेम ग्रुप के लोगों के इतनी अच्छी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि उन्हें फील आनी चाहिए कि उनकी यहाँ पे बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। अगर वो मेंटली सेटिस्फाइड होंगे तो वो कभी कभी इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते कि उनकी सैलरी थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर कोई भी नई चीज़ आप अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि आप फोर्स करेंगे एम्प्लॉयज़ को आप ही सीख के आओ, कहीं से सीख के आओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो ही उन्हें सिखाती हैं एक साथ, तो वो अच्छे से सीख पाते हैं और वो थोड़े से स्ट्रेस फ्री रहते हैं कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सिखा दिया, अब हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल रिकॉग्निशन। जितनी ज्यादा उनकी अच्छी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और बाहर भी होती है तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। यानी कि हमें बीच बीच में इस तरह से के प्रोग्राम्स करने चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो जैसे कि रिवॉर्ड प्रोग्राम्स रखने चाहिए कि उन्हें सोसाइटी में भी एक अच्छी रेपुटेशन मिलती है कि उनकी एक अच्छी एक इमेज है ऑर्गेनाइजेशन में। So, coming to the next topic, that is importance of management. अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे है ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे तो हमने बहुत पढ़ लिया क्या है, मैनेजमेंट के बिना कोई काम ही करना आसान नहीं है, बट फिर भी उसके रोल क्या है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो भी ग्रुप गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। अगर काफी सारे लोग यानी कि टीम हम कहते हैं वो मिलके काम करेंगी। दो भाई भी आपस में फाइट करने लग जाते हैं घर में, वैसे ही अगर कोई दो लोग सेम पोजीशन पे है उनको क्या चाहिए कि उनको सेम रेपुटेशन मिले, सब बहुत बेस्ट हैं, सब यही मान के चलते हैं। तो अगर सारे एक दूसरे को बेस्ट मानेंगे और एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वो टीम की तरह वर्क नहीं कर सकते। उस टीम को कोऑर्डिनेट करना, उनके इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मैच कराना, ये मैनेजमेंट का काम है।
सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, उनको मोटिवेट करती है बार बार कि वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से काम को करें और कम से कम कॉस्ट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करें। द थर्ड पॉइंट इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। वो डायनेमिक रहते हैं। क्यों रहते हैं डायनेमिक? क्योंकि कभी भी कोई भी नया चेंज आ रहा है, सर्वाइवल करने के लिए नए कॉम्पिटिटर आ गए, उन्होंने नई एक चीज इंट्रोड्यूस कर दिया, नया मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया है, या उनके किसी खाने पीने की चीज का नया इंग्रेडिएंट दिखा करके अपने प्रोडक्ट को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको भी वैसा ही कोई चेंज लाना पड़ेगा जिसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है मैनेजमेंट। द फोर्थ पॉइंट इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मोटिवेट करते रहना उनको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉय अपने बारे में भी सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन्हें ये रियलाइज कराना कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो, या अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना कि अगर वो अच्छा करेंगे तो उनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या कोई इंसेंटिव प्रोग्राम्स रखे जाएं। ये काम भी मैनेजमेंट का ही होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं वैसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सोसाइटी के टुवर्ड्स भी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं, मैनेजमेंट थोड़ी कर रही है, वो तो प्रोडक्शन कर रही है। नहीं, काम किसका है फिर भी? ये मैनेजमेंट का। कैसे? वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी, उनको ये रियलाइज करा के कि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और बहुत से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और नई नई टेक्नोलॉजी को लाना है, ये डिसीजन भी मैनेजमेंट का ही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड टू गेट मोर वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट